مرتبہ پھر انوار رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان رضا سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں جی. مختلف مہمان جیسے کہ آپ جانتے ہیں وہ بھی ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ میں شامل ہوتے ہیں اور آج بڑے خاص اور بڑے اہم مہمان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جی. ان کی طرف بھی جاؤں گی. علماء کرام تو بیٹھے ہی ہیں میرے ساتھ اس خوبصورت بابرکت محفل میں. ساتھ ہی جی مجھے جوائن کر رہے ہیں اب اس وقت نہال ہاشمی صاحب ہے, سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کے, اور آپ کو مطلب ان کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب ان کو جانتے ہیں, مختلف ٹی وی ٹاک شوز پہ بھی روزانہ دیکھتے ہیں. ان کو خوش آمدید کہتی ہوں. سب سے پہلے السلام علیکم نہال ہاشمی صاحب, بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس آئے. رمضان مبارک آپ کو. وعلیکم السلام اور آپ سب کو مبارک. اور ساتھ ہی جی بیٹھے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے ہی رہنما ہیں اسد عثمانی صاحب ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. بہت شکریہ اسد بھائی, تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہیں گے اپنی ٹرانسمیشن میں. سب سے پہلے نہال ہاشمی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. نہال بھائی یہ بتائیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ کیسا گزرا ہے؟ پہلے تو ایک پولیٹیکل ہیپننگ اتنی زیادہ بنی رہی پچھلے 2 مہینوں سے, اور ابھی بھی اس وقت بھی موجودہ صورتحال میں, تو ویسے تو ایک بڑا سوال میں نے کرنا ہے لیکن وہ آگے جا کے کروں گی, لیکن پہلے تو یہ بتائیں کہ گزر کیسا رہا ہے, اور عام دنوں کے اعتبار سے اس مہینے میں کیا کوئی روٹین چینج ہوتی ہے, کیسا کرتے ہیں ساری چیزیں مینیج؟ ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بہت ہی شاندار, بہت پروقار طریقے سے گزر رہا ہے رمضان. یقیناً عام دنوں کے بنسبت زندگی کے معاملات میں چینج ہے. بہت ساری جو ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم سے ریاکاری, مکاری, منافقت, جھوٹ, فریب جو کچھ ہوتا ہے اس سے ہم بچ جاتے ہیں. بہت سارے آپ کو پتہ ہے ہم ویسے سیاسی لوگ ہیں تو کئی وقتوں میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہمیں تقاریر میں اور باتوں میں کئی لوگوں پہ کچھ باتیں کر جاتے ہیں بغیر تصدیق کے. پھر آپ کے خوراک میں توازن پیدا ہو جاتا ہے, آپ کے مزاج میں 1 گھنٹے کے لیے تھوڑی چڑچڑاپن ہوتا ہے عصر سے مغرب کے درمیان, باقی آپ کے اندر بہت اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرتا ہے. بے شک. آپ کی صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے, بڑی پیوریفیکیشن ہو جاتی ہے, آپ لینے سے زیادہ دینے پہ یقین رکھتے ہیں. واہ کیا خوبصورت بات کی آپ نے. اور بالکل کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور میں تمہیں عطا کروں گا, تو وہ صفت انسانوں میں بھی آ جاتا ہے اور لوگ ایک ثانیہ سے سب کو دیکھتے ہیں. تو اس سے خوبصورت مہینہ ہو نہیں سکتا ہے. اور جہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ کو بتاؤں, آپ کہیں پہ کوئی ڈنر کرواتے ہیں نا, تو پریزیڈنشل ڈنر ہو, وزیر اعظم کو ہو, کوئی بڑے عالم ہو, بڑے لیڈر ہو, بڑے سیلیبریٹی ہو, ایک وقت میں سارے اپنے منہ میں نوالا نہیں ڈالتے ہیں. یہ پہلا اوکیزن ہوتا ہے رمضان کا جب ادھر ہوتا ہے اللہ اکبر اور سارے لوگ ایک ہی وقت میں منہ پہ نوالا ڈالتے ہیں. سیکنڈ کا فرق نہیں ہوتا ہے, میکسیمم 30 سیکنڈ ہوگا, خواہ وہ کھجور سے اپنے منہ کو, خواہ وہ پانی ہو, خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو, بٹ ٹائم جو ہے وہ ایک وقت ہے. یہ اتنا منفرد ہے, میں سمجھتا دنیا کے کسی سماج یا کسی معاشرے میں ادر دین اسلامک ورلڈ یہ امتیاز حاصل کسی کو نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا خوبصورت مہینہ ہے اس معاملے میں. خوبصورت بات آپ کہہ رہے ہیں. اسد بھائی آپ سے کی طرف بھی آؤں گی, اور رمضان کا مبارک مہینہ کیسے گزر رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جو لوگ اپنے نیشنل لیول پہ ورکرز کے ساتھ بھی موجود ہوتے ہیں, کانسٹیٹوئنسیز بھی پھر آپ لوگ کی سب کی ہوتی ہیں, اور لوگوں کو بڑا آپ لوگوں سے جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, ہر بندہ چاہتا ہے جی ہمارے پاس پہلے آ جائیں, ہمارے پاس سب سے پہلے آئیں, تو پھر کیسے توازن رکھتے ہیں چیزوں میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں بتاؤں گا رمضان المبارک ایک وہ مہینہ ہے, اور رمضان کے روزے وہ ہیں کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کا میں آپ کو خود انعام دوں گا, اس کا بتایا نہیں گیا. تو خوش نصیب ہے وہ مسلمان جن کو رمضان المبارک ملا, اور انہوں نے اگر اس کو اویل کیا تو یہ اس سے زیادہ خوش نصیبی کی بات ہے. اور رمضان کے مہینے میں تو جتنی برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جس گھر میں سالوں میں اگر کوئی گوشت نہیں پکتا اس گھروں میں بھی گوشت پکتا ہے, کیونکہ لوگ ہمارے ماشاءاللہ سے رمضان کے مہینے میں اپنے تمام تر تجوریاں کھول دیتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ 12 مہینے یہ کام کرنا چاہیے. رمضان میں زیادہ کریں مگر 12 مہینے ایسے کام کرتے رہنے چاہیے. دوسرا آپ نے پوچھا کہ اصل میں رمضان تو سیاسی لوگوں کے لیے سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ایک دن میں 4 افطاریاں ہوتی ہیں. کہ شادی تو آپ 4 اٹینڈ کر سکتے ہیں مگر افطاری 4 اٹینڈ نہیں کر سکتے, کہ اذان ایک ہی ٹائم ہوتی ہے.
तो हम ये करते हैं कि कहीं खजूर खाई, कहीं जाके पानी पिया और कहीं जाके खाना खा लिया। सही। तो एक एक दिन में 3-3, 4-4 अफ्तारियों में जाना पड़ता है। हाँ जी, तो भाई अल्लाह ताला सिस्टम चला रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आज भी आपके यहाँ से उठेंगे तो कोई भाग के पहुंचे हैं और कहीं वहां से कहीं और पहुंचे। आज भी 2 अफ्तारियां और हैं। तो भैया लेकिन आपको तो हमने अपने साथ इफ्तारी के लिए बुलाया है, आप हमारे पास से चले जाएंगे जल्दी। चले जी, लेकिन ये होना नहीं चाहिए, वैसे हमारे पास करनी चाहिए इफ्तारी। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे मेहमान आए तो वो हमारे साथ इफ्तारी करें। चलिए नाज़रीन, ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे भी बढ़ाते हैं। उलमा कराम की तरफ में आऊँगी। मुफ्ती वसीम सादिक बंदगी और आलमा सायरा आबदी साहिबा बैठी हैं जी। उनसे हम बात करते थे रिस्क हलाल की। अब मैं चाहूँगी कि उस पहलू पे जो आप चाह रहे थे कि सेकंड हम फेज़ के ऊपर बात करें कि रिस्क हलाल जो है वो किस तरह से फिर अगर हराम हो जाता है, या फिर हमें ये भी देखना है कि जो लोग उससे नेकियां कर रहे हैं और जो सारे काम कर रहे हैं क्या वो काबिल कबूल होंगे। जी देखिए, हमारी जितनी भी इबादत हैं, लोग बड़े शौक़ से आजकल उम्रे का एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ, जाते हैं हज पे जाते हैं। बहुत सारे लोग सखावत का इजहार करते हैं, सदका खैरात कर रहे हैं, लोगों को अफ्तारी करवा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के पीछे आपके रिज़्क़ हलाल का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इन इबादत की कबूलियत में, इनके अंदर पुरतासीर होने में, आपकी दुआओं के अंदर तासीर पैदा होने में, इबादत की जो रूह है उसके बेदारी में, इन तमाम चीज़ों में आपके रिज़्क़ का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। अगर कोई शख्स रिज़्क़ हलाल को छोड़कर हराम ज़राए से खाता पीता है, माल जमा करता है, पहनता है, उम्रे पे जाता है, हज करता है, सदका करता है, ये तमाम इबादत उसकी रिज़्क़ हराम की वजह से कबूल नहीं होंगी। और ये कहना हमारा अपना नहीं है, क्योंकि इसका फ़ैसला नबी पाक दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। आका अलैहि सलाम का ये इरशाद पाक है कि एक शख्स अपने घर से निकलता है, दूर दराज से सफ़र करके बैतुल्लाह में जाता है, और इतना लंबा सफ़र करने के बाद वहाँ पर एक बुरी हालत में पहुँचा है, फिर गिड़गिड़ा के रो के अल्लाह से दुआएं मांग रहा है। तो अल्लाह ताला की तरफ से एक निदा दी जाती है, जवाब आता है उसकी दुआ के ऊपर कि मैं इस बंदे की दुआ कैसे कबूल करूं कि इसके बदन पर जो कपड़ा है वो हराम का है। मैं इसकी दुआ कैसे कबूल करूं कि इसने जो रिज़्क़ खाया है, जो इसने तवानाई हासिल की है, वो हराम का है। तो जिससे पता ये चला कि आप अगर रिज़्क़ हराम इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपकी इबादत, आपकी दुआएं और आपकी इबादतों के अंदर पैदा होने वाला जो असर है, रूहानियत है, वो सब मफकूद हो जाती है, वो सब ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारा बिल्कुल समझने की एक बुनियाद है कि हम सबसे पहले ये नज़र करें कि भाई हम जो कमा कर लाते हैं उसमें कोई हराम ज़राए तो शामिल नहीं है। अच्छा, अब के ज़माने में एक बड़ा मसला ये हो गया कि हम अपने रिज़्क़ हलाल को भी हराम कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स कोई चीज़ बेचता है, वो आपको दिखाता कुछ है और देता कुछ है, यानी वो उसमें ख़यानत कर लेता है, वो उसमें धोखा कर लेता है। अब चीज़ उसने आपको दे दी है, लेकिन उसने धोखे के साथ जो दी तो वो उसके अंदर जायज़ नहीं था, धोखा करना, ख़यानत कर दी, ये उसके लिए जायज़ नहीं था। जो चीज़ वो नाप तोल कर आपको दे रहा है उसमें कमी बेशी करता है, ये उसके लिए जायज़ नहीं था। अब आपने मिसाल के तौर पर 100 रुपये की चीज़ लेनी थी, उसने उसमें नाप तोल में कमी करके आपको 90 की दे दी। अब बिला वजह जो हलाल चीज़ थी उसको भी उसने हराम किया। यानी इस तरह के हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं कि झूठ बोलकर, ख़यानत करके, धोखा दे के, नाप तोल में कमी करके, और इसी तरह किसी का हक़ मार के, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। उन सब में हम क्या करते हैं, अपने रिज़्क़ हलाल को भी हराम कर देते हैं। अच्छा, फिर जब यही रिज़्क़ हराम, अच्छा इस तरह एक चीज़ बहुत ज़्यादा है कि हम क्या करते हैं, अभी रमज़ान के महीने में हम महंगाई बहुत ज़्यादा करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करते हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा करते हैं। यानी 50 वाली चीज़ को हम 100 में बेच रहे हैं। तो हम लोगों का जो इस्तेहसाल कर रहे हैं, परवरदिगार आलम तो देख रहा है, इसी तरह हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके महंगे दामों फ़रोख्त कर रहे हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो हमारे रिज़्क़ हलाल को भी हराम में कन्वर्ट करती हैं। अच्छा, फिर उससे हमारी इबादतों की सारी तासीर ख़त्म हो जाती है, असर ख़त्म हो जाता है। फिर हम रोते हैं कि भाई हम दुआ मांग रहे हैं, कबूल नहीं हो रही। अरे इबादत कर रहे हैं, मज़ा ही नहीं आ रहा। मस्जिद में जाते आखिर में जब जमात खड़ी होती है, इमाम साहब की दुआ से पहले बाहर निकलने की सोचते हैं। तो मस्जिद तो वो मकाम है जहाँ सुकून कल्ब मुयस्सर आना चाहिए, ये क्यों नहीं आता? इसलिए कि आपका रिज़्क़ हलाल का नहीं है, तो फिर आपको वहाँ सुकून कल्ब मुयस्सर नहीं आएगा। ठीक है, बहुत अच्छी और जी 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 बोलिए। रिज़्क़ हराम वो भी है कि आप कहीं मुलाजमत करते हैं, सरकारी या गैर सरकारी, आप जिस वक्त आप मुकर्ररा पे आप अपने नौकरी पे नहीं जाते हैं। जी हाँ, और ये हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में पाकिस्तान में ऐसे हराम खोर जिन्हें कहते हैं, ये पाए जाते हैं। ये हराम खोर अपना भी रिस्क हराम करते हैं और अपने बच्चों के भी जो है वो रिस्क हराम करते हैं।
इसी तरह इसमें ये भी घोस्ट ऐड करें आप मुलाजमीन कि घोस्ट एम्प्लॉयज, घोस्ट इवन मुलाजिम। घोस्ट भी ना हो। घोस्ट मुलाजिम। कई लोग आते हैं 9 बजे आ गए ऑफिस और आकर के अखबार खोल के बैठ गए, या फोन पे अपने घर पे बात कर रहे हैं, या वो सिगरेट पी रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये सिर्फ छोटे स्टाफ नहीं, मुझे याद है एक मैं नया वकालत हुआ तो एसडीएम साहब आए, उन्होंने कमरा बंद किया और अपनी फैमिली से बात कर रहे, तो मैंने कहा आपके ज़ाती रूम है ये? एसडीएम साहब ये सरकारी रूम है और सरकारी फ़ोन है और अपनी ज़ाती अंकल से और बेगम से और भाभी से कैसे बात कर रहे हैं, तो वो भी हराम है। सही, बहुत इस्लाम अच्छी, बड़ी सख्ती करता है इस मामले में। बहुत अच्छी बात इसी है। तरह इसमें ये भी ऐड कर दें कि जो लोग सरकारी ओहदों पर फायज होते हैं या जिनके पास इख्तियारात होते हैं, जी। और अक्सर ये देखा गया कि वो सरकारी ख़जाने को ज़ाती इस्तेमाल में लेकर आते हैं, तो ये भी हराम है, क्योंकि जो सरकारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सरकार की हैं या सरकार के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके पैसे से अफ्तार पार्टी की है। हाँ नहीं, ये भी जायज़ नहीं है। सरकार के पैसों से अपने ज़ाती उम्रे फैमिली को ले जाना ये भी जायज़ नहीं है। जितनी भी ये चीज़ें, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़ा हमारे लिए रोल मॉडल है। आपने एक मिसाल कायम की, आप जब दफ्तर में बैठ के काम कर रहे थे तो आपसे कोई शख्स मिलने आ गया, तो चिराग जल रहा था, आप काम कर रहे थे दफ्तर का, तो उसने कहा जी मुझे आपसे मिलना है। आपने पूछा कि मेरे ज़ाती मामले में या कोई सरकारी मामले में? उसने कहा आपके ज़ाती मामले में। तो आपने उस चिराग को बंद कर दिया। उसने कहा जी चिराग क्यों बुझा दिया? कहा इसलिए कि अब मेरे ज़ाती मामले में तुमसे डिस्कशन चलेगी और ये पहले मैं सरकारी काम कर रहा था और ये चिराग भी सरकारी है। तो यानी ये भी मतलब हमारे लिए एक मिसाल है कि हमें देखना चाहिए कि हम अपने ज़ाती इस्तेमाल में तो ये चीज़ें नहीं लाते हैं। वाह क्या खूबसूरत बात। और छोटी छोटी बातें जो होती हैं ना नाज़रीन, वो हमें नहीं मालूम होती, लेकिन उनके ऊपर आज रोशनी डाली जा रही है ताकि आपको एक दफ़ा फिर रिमाइंडर, आपको एक तरीके से ये जो ट्रांसमिशन के सिलसिले होते हैं और जो महीना आता है वो आता है इसलिए कि आपकी एक दोबारा से प्रैक्टिस हो जाए, एक रिमाइंडर के तौर पे आपके ध्यान में आ जाए कि आप कोई कोताही या गलती तो नहीं कर रहे, तो आप उससे बचें जितना बच सकते हैं। आलमा सायरा आप की तरफ आऊँगी। अच्छा, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है, फिर हमने ब्रेक की तरफ जाना है, तो मैं आपसे चाहूँगी आलमा साहिबा कि इस पर थोड़ी सी आप भी रोशनी डाल दीजिए। सारे यही रिस्क हलाली तो है कि जब इंसान मनसब पे फाइज हो तो पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मुझसे पहले कहीं किसी चीज़ में गबन तो नहीं हुआ। अब माशाल्लाह से सबने इतना खूबसूरत तरीके से बता दिया, तो मैं अब जिस उन्वान पे रोशनी डालना चाहती हूँ वो ये कि अब आप जब किसी मनसब पे आ गए, आपसे पहले किसी भी, कोई कलेक्टर है, कोई डायरेक्टर है, पहले एम्प्लॉयमेंट में वो चीज़ नहीं थी, प्रॉपर जो है अदल इंसाफ नहीं था, लेकिन अब आप किसी मनसब पे आए, आपसे पहले हुकूमत ने या आपसे पहले जो इस मनसब पे फाइज है उसने क्या किया, या फिर पहले अदल इंसाफ हुआ या नहीं हुआ। अब जैसे मौलाए मुत्तकियान है, जिस वक्त उनको खिलाफत मिली बज़ाहिरी, तो उसके बाद क्या किया, उन्होंने कहा, लोगों से कहा कि जिनके पास जो है बैतुल माल से पहुंचा हुआ खजाना है, अगर उन्होंने अपनी ज़ौजा क्या उससे हक महर भी दिया है तो मैं वापस दूंगा। और फिर यही कि जैसे इन्होंने फरमाया कि मौला के साथ कोई भी असहाब आता है और वो चिराग रखा होता है या बैतुल माल का कोई भी खजाना, वो उसके ऊपर अपनी ज़ाती मनसब के ऊपर खर्च नहीं करते। और फिर रात की तारीखी में किस तरह से लोगों को बांटते हैं, वो बांटना जो है वो भी बैतुल माल से इतना ज़्यादा नहीं कि अपनी मेहनत को भी साथ में लगाया। कहीं हम अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन वो हुकूमती खजाने से कर रहे हैं, तो वो भी तो रिस्क हलाल नहीं, क्योंकि आपकी एंड मंशा है ना, आप अपनी मंशा के हिसाब से किसी की मदद कर रहे हैं, तो वो आपकी ज़ाती जो खजाना है उसका इस्तेमाल है। अपना फेवरेटिज्म जो है आप हर जगह जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सही, क्या खूबसूरत बात आपने भी की जी। हमारे सारे मौजूद मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं नाजरीन, और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। और ट्रांसमिशन के जी स्पॉन्सर्स की मैं भी बात करूँगी, लेकिन अभी चूँकि मुझे वक्फे पे जाना है तो वक्फे पे जा रही हूँ एक छोटे से ब्रेक पे, तो उसके बाद वापस आ रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू।